Dear students, today we shall study about a lesson in, in which there is a description of a traveler who was a fellow traveler. And this particular lesson, the name of this lesson is A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. First, I want to tell you about the brief life history of A.G. Gardiner. You know that A.G. Gardiner was a famous essayist of the modern age. He wrote various types of essays, and his essays are found on different topics like social topics, personal topics, civil topics, and this author A.G. Gardiner was born in England in 1875, and he is well known for his essays. He was a good editor of a London newspaper, and the name of the newspaper was the Daily News, and he edited this newspaper, Daily News, for 17 years. And this lesson, which is prescribed in your book, this lesson belongs to the personal story of writer. In other words, we can say that this is a personal essay of the writer. Today we shall start the first paragraph, the opening paragraph of this lesson, and you have to explain it, reference, as well as you have to explain it with context also. You know the manner of how to write the reference and context, and then the explanation of the passage. And now I am going to start the first paragraph of this particular lesson, and you have to take it deeply and explain in your own words. In the first paragraph, in the opening paragraph, the writer described about a train journey in which he was traveling, and this train started from London. तो आइए देखिए, अब हम पहले इसका पढ़ रहे हैं। आप लोग देखिए, किताबें खोल लीजिए अपनी। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. It was the last train from London to Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started,
but as we stopped at the suburban stations, the travellers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. देखिए इसका पहले हिंदी में इसका समझ लीजिए क्या अर्थ कहता है। लेखक महोदय, ये एजी गार्डनर इस पाठ के लेखक हैं। इन्होंने एक लघु यात्रा किया। लंदन के रहने वाले थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, ब्रिटेन में, और लंदन से इन्होंने एक लघु यात्रा शुरू किया एक रेलगाड़ी में। और उस रेलगाड़ी में कुछ दूर चलने के बाद जब सब यात्री उतर गए तो उस जिस कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बे में बैठे थे, उसमें एक भी यात्री नहीं था। केवल एक बहुत छोटा सा यात्री बचा था, वो था मॉस्किटो, माने मच्छर। तो इस पाठ में मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, वही सहयात्री है, फेलो ट्रैवलर है। पाठ का नाम है, शीर्षक पाठ का दिया गया है फेलो ट्रैवलर, सहयात्री, साथ चलने वाला यात्री, साथ में जो यात्रा करता है। इनके साथ कोई मानव नहीं था, एक मच्छर था उस कंपार्टमेंट के अंदर, और उसी के साथ ये जा रहे थे कंपार्टमेंट में बैठ करके गाड़ी से। तभी इनके अंदर एक विचार पैदा हुआ, भावना पैदा हुई, इन्होंने ये निबंध लिख डाला और उसका टाइटल रख दिया ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। तो देखिए आइए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। लेखक कहते हैं, एजी गार्डनर साहब कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि विच ऑफ अस, हम में से, विच माने कौन, हम में से कौन, गाट चढ़ा या सवार हुआ, इनटू द कैरेज, कैरेज माने गाड़ी के अंदर, फर्स्ट माने पहले। मैं नहीं जानता हूं कि पहले हम दोनों में से पहले गाड़ी में कौन चढ़ा, मतलब मच्छर और लेखक महोदय दोनों में से गाड़ी में पहले कौन चढ़ा, इस बात को लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूं कि हम में से, हम दोनों में से गाड़ी में पहले कौन चढ़ा, इसको मैं नहीं जानता हूं। इंडीड आई डिड नॉट नो, इंडीड वस्तुतः, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल, कि वो कैरेज के अंदर था। ही वॉज इन द कैरेज, वो कैरेज माने गाड़ी के अंदर वो था। एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से, फॉर सम टाइम, कुछ समय, एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से वो गाड़ी में था। मैं इस बात को वास्तव में नहीं जानता हूं। कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं जानता हूं कि वो पहले से ही गाड़ी में, कुछ समय पहले से ही गाड़ी में था। कौन? मच्छर। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जिसमें, जिस गाड़ी में वो बैठे थे, जिस ट्रेन में बैठे थे, वो कहते हैं इट वॉज द लास्ट ट्रेन, वो अंतिम ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, लास्ट ट्रेन थी वो। फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जो जाती कहाँ थी? लंदन से, फ्रॉम लंदन, लंदन से मिडलैंड टाउन, मध्यवर्ती टाउन माने कस्बों की ओर। लंदन के बाद, लंदन के आगे जो मध्यवर्ती, मिडलैंड माने मध्यवर्ती टाउन, जो कस्बे पड़ते हैं, उनकी तरफ हो जाने वाली गाड़ी थी और अंतिम गाड़ी थी। उसके बाद फिर दूसरी कोई गाड़ी नहीं जाती थी, स्टॉप हो जाता था। तो इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड, ये लंदन से मिडलैंड जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। और क्या था? देखिए आगे डैश लगा दिए, डैश लगा करके उस गाड़ी की कुछ विशेषताएं बताने जा रहे हैं कि गाड़ी थी कैसी। गाड़ियां तो बहुत प्रकार की होती हैं। ए स्टॉपिंग ट्रेन, ये देखिए पहली विशेषता, पहला इसका जो इसमें विशेषण जो जोड़ा गया, स्टॉपिंग ट्रेन थी। स्टॉपिंग ट्रेन कौन होती है? जो स्टॉप कर करके चला करती है। स्टॉपिंग, रुक रुक कर स्टेशनों पर, सभी स्टेशनों पर जो रुका करती है, जिसमें यात्री चढ़ा करते हैं, उतरा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेन थी ये कोई एक्सप्रेस या हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी। स्टॉपिंग ट्रेन थी, रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। एंड इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, और क्या थी? इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बहुत ज्यादा लेजरली ट्रेन माने आराम से चलने वाली गाड़ी थी वो। लेजर, लेजर से बना है आराम से,
धीरे धीरे आराम से इनफाइनेटली माने बहुत अधिक बहुत ज़्यादा आराम से या धीरे धीरे चलने वाली वो ट्रेन थी। दो विशेषता, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, लेजरली ट्रेन थी माने वो बहुत आराम से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन गाड़ियों में से, वन माने एक थी, उन गाड़ियों में से एक थी, विच जो गिव यू आपको देती हैं एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी माने निरंतरता या शाश्वतता का, अंडरस्टैंडिंग माने ज्ञान, जो शाश्वत या निरंतरता का ज्ञान देती हैं। इटर्निटी, इटर्नल, कोई चीज इटर्नल होती है, शाश्वत होती है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग देने वाली ये गाड़ियों में से एक गाड़ी थी। उस गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा एहसास होता है बैठने वाले को कि ये जो है उसके अंदर एक समझ पैदा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। कहा है कि इटर्निटी की, शाश्वत, शाश्वत माने हर चीज शाश्वत है, इसका ज्ञान पैदा होता है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, वो टॉलरेबली फुल माने पूरी तरह से वो भरी हुई गाड़ी थी, वो फुल, पूरी तरह से भरी हुई थी, कंप्लीटली फुल। व्हेन इट स्टार्टेड, जब वो स्टार्ट हुई, जब वो चली गाड़ी लंदन से, जब वो गाड़ी चली तो वो पूरी तरह से टॉलरेबली पूरी तरह से फुल थी, भरी हुई थी यात्रियों से। बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, जब हम स्टॉप करते थे, रुकते थे, एट द सबर्बन स्टेशन। सबर्बन स्टेशन कौन होते हैं? उपनगरीय स्टेशन, शहर के मुख्य जो शहर होता है, जैसे लंदन शहर के बाद जो लंदन से जब गाड़ी चली तो बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन उसी शहर की सीमा के क्षेत्र के अंदर वाले जो पड़ा करते हैं उनको सबर्बन स्टेशन कहते हैं। तो जब हम रुकते थे, when we stopped at the suburban stations, जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर स्टॉप करते थे, रुकते थे, the travelers alighted, यात्री alighted माने उतरते थे गाड़ी से, in ones and twos, ones माने एक एक करके, and twos एक एक करके, दो दो करके, कहीं एक कहीं दो दो करके, इस तरह से लोग सबर्बन स्टेशन पर उतरते गए। एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट, और इस समय तक वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, द आउटर रिंग ऑफ लंदन। आउटर रिंग, आउटर रिंग बाहरी सीमा, लंदन नगर की जो बाहरी सीमा थी, आउटर लिमिट जो थी उस शहर की, उस नगर की, उसको हम लोग अब तक छोड़ चुके थे। और बिहाइंड आई वाज एलोन, और मैं अकेला हो गया। मतलब ये लोग एक एक करके, दो दो करके उतरते गए और लंदन की बाहरी सीमा में पहुंचते पहुंचते मैं उस कंपार्टमेंट में अकेला रह गया। और रादर आई थॉट, अथवा मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा कि आई वाज एलोन, कि मैं अकेले हूं। लेखक कहते हैं कि जब लंदन की बाहरी सीमा समाप्त हो गई उस समय तक मैंने अपने मन में सोचा कि मैं अकेला हूं, और मैं अकेला हो भी गया था। अर्थात अब कंपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रेवलर नहीं थे और केवल लेखक महोदय उसके अंदर थे। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। द राइटर A.G. Gardiner describes about his journey which he started from London to Midland towns. The train, in the opening paragraph, the writer describes about the condition of the train in which he was traveling. The train in which he was traveling was a stopping train, was a slow speed train, and the train stopped at every stations. In other words, we can say that it was a passenger train. And the author says
that he did not know who got into the train first, because there was a fellow traveler of the writer, and the traveler was mosquito. The writer says that he did not know who got into the carriage first, writer or the mosquito. And the train in which he was traveling was the last train from London to Midland town. And this train stopped at every stations, and it was a leisurely train, a slow speed train, as well as this train gave the feeling of eternity in the mind of a traveler. When this train started from London station, it was completely full of passengers. But as this train started and the speed was slow, in the suburban stations. Which are suburban stations? Suburban stations are those which are found in the outer limit of city. And the train stopped at every suburban stations. The passengers got down, somewhere one and somewhere two passengers got down from the train, and gradually, when the writer reached on the outer ring of London, all passengers of train had gone away, and the train was completely vacant. The train was completely without no passengers. Only in the compartment there was Arthur A.G. Gardner. He was alone, and a mosquito, which was the fellow traveler of writer. And then the writer thought himself that he was alone in the compartment. Now you have to explain it, and tomorrow I will come with next video of this lesson. Thank you.